Hello students, today we will discuss about Python pandas. What is the meaning of pandas? Actually a library. So pandas is a Python library which is used for data sets. Basically it is used for analyzing data, cleaning data, exploring and manipulating data. That means हम लोगों को डेटा साइंस की प्रोजेक्ट में पांडा जो होती है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसका यूज करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ this library is working for data analysis, data cleaning. Okay, so पहले क्या करना पड़ेगा? For initially हमको we have to install it. So let's write pip install pandas. So it is showing requirement is already satisfied. That means I have already installed pandas. Then we have to write import pandas as pd. What does it mean? I am importing pandas as PD. So going forward, instead of writing pandas, I can write only PD. So I have in one line you can say I have given another short name of pandas, PD. You can give any name. So I have given PD. Okay. So now what I will do, I will create a series. So first concept of the pandas library is what is a series. So what is a series? A panda series is like a column in a table. इट्स एन वन डायमेंशनल array होल्डिंग डेटा ऑफ वन टाइम. उसका मतलब है pandas इज नथिंग बट ए वन एक डायमेंशनल array होता है. सो लेट्स डू दिस प्रोग्राम. व्हाट इज देयर इनसाइड दिस प्रोग्राम? Here I have declared a as 172. It's an array. So then I have converted pd dot series a. Okay, that means I'm declaring an array, and now using dot series function here what I'm doing, I'm converting array to series. As series is one dimensional, so array is one dimensional. So now here array is converted to series, and I'm printing this. Okay. So what is series? Series is nothing but one dimensional data, which also is similar to array. Then we'll discuss about labeling. Labelings like the indexing again starts from zero, as I'm doing in array also. So here, if I will say I want to print the index value at zero, so what will it be printed? One, because one is the first element, or it is placed as the zeroth index value. Then we also can create labels. हम लोग लेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक डेटा फ्रेम है ये. सो हियर 172 इज एन array. सो इसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. pd डॉट सीरीज ए एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं. एंड नाउ इट इज इंडेक्स, एक लिख रहे हैं हम इंडेक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड. उसका मतलब होगा, अगर ये वाली लाइन को हम हटा दें, ये वाली लाइन को हम कमेंट कर दें, उसको बाद में देखेंगे. सो नाउ आउटपुट विल बी x is y, x is 1, y is 7 and z is 2. So now what is happening? The labels are getting associated with each respective data. Okay. So now if I will print only y, so y, what is the value of y will come over here? The label of y will come over as 7. The output is coming as 7. Now we'll discuss about what is a data frame. So basically series is one dimensional and data frame is two dimensional. Two dimensional means there will be row and column. Okay, so in so in the pandas we can also deal with data frame, which is nothing but 2D in nature, two dimensionals. There will be a row and a column. So here I have declared data where calories is 420, 380, 390 and durations are 50, 40, 50. 45. So then what we'll do, then I will just print whatever I have declared. So in order to do that, let me write this code. Here
I have converted this data frame, okay, to a variable. Means this is your data given, okay, but here pt dot data frame. I have used this function. I have passed this data as an argument, and this data now this data is converted to a data frame, okay, and this data frame is now this variable. So if I will print df, so it will come like this. It is coming 0, 1, 2, means these are the numbers, otherwise everything given calorie 420, 380, 390. So in this way we also can convert the given data with data frame. So why to convert the data frame? Because it allows us to do the manipulations of data. So after converting it to data frame, it will be easier in data analysis or data science projects. सो बेसिकली पांडा को यूज करके हम करते क्या है, डाटा को क्लीन करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो क्लीनिंग में ये बहुत रिगरसली यूज होगा, आगे चल के हम क्लीनिंग भी करेंगे डेटा को। सो लेट्स सी हाउ डेटा क्लीनिंग इज एक्चुअली occurred using pandas. So let's start. So अभी आइडेंटिफाई करने के लिए आई कैन यूज दिस command, means this line of code. So what is it? I just want to print जीरोथ लोकेशन में क्या है। सो जीरोथ लोकेशन में कैलोरीज ड्यूरेशन, कैलोरीज का 420 है और ड्यूरेशन का 50 है। तो जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ऐसे लोकेशन में रो प्रिंट हो गया। अब कॉलम प्रिंट करेंगे। तो कॉलम प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू राइट लाइक दिस। सो हमें ये करना पड़ेगा कि प्रिंट df हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज df इज नाउ द वेरिएबल व्हिच इज द डेटा फ्रेम। सो df डॉट लोकेशन 0, 1 का मतलब है ये जीरो थ्रो रहेगा, फर्स्ट कॉलम रहेगा। तो दो दो का काट दिया, 0 से 1 दोनों का आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो इस दौरान हमें डेटा मिल जा रहा है। तो अभी इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में जैसे हम पढ़े थे कोई भी डेटा फ्रेम हो उसके बाद हम इंडेक्स करेंगे तो वो डे 1 में ये आ जाएगा। लेट्स डू दिस प्रोग्राम, व्हाट्स हैपनिंग हियर। Here what's happening, you are okay, so this thing is getting error. Okay, now it will come. Okay, so here I have declared data, I have converted to data frame, then I've done indexing. So day 1, day 2, day 3, now indexing is there. So it's a 2D table basically, and I achieved doing by indexing. ये तो हम पहले भी कर चुके थे। So अब क्या करेंगे, load files into a data frame. So now in this section we will load an external file. External file मतलब बाहर से एक डेटा सेट हम यहाँ पर अभी लोड करेंगे। सो लोड करने के लिए हमें input pandas as pd लिख दिए। df जो है, जो डेटा फ्रेम वेरिएबल है, उसको हाउ टू राइट pd डॉट रीड csv। तो ऐसे करके हम ये वाले जो CSV कॉमा सेपरेट वैल्यू जो डेटा सेट है उसको आज एन आर्गुमेंट पास किए तो पास हो गया। तो यहाँ पर हम एक डेटा ले रहे हैं जो ये वाले स्टूडेंट हैं, तो हम स्टूडेंट डेटा ले रहे हैं। तो स्टूडेंट डॉट CSV कर दिए और प्रिंट df कर दिए। तो उसका मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट डाटा, ये मेरे पास स्टूडेंट डाटा है, हम खोल के दिखा सकते हैं, ये वाला डेटा मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट डेटा है। तो ये जो इतने सारे आप डेटा देख रहे हैं स्टूडेंट का, इतने सारे लगभग कितने रोज हैं अब देख लेते हैं, 1000 रोज हैं एंड बहुत सारे कॉलम्स है। सो इतने सारे जो डेटा अवेलेबल है उसको हम अभी लोड कर दिए और डीएफ में वो बेसिकली दिखा रहा है कि 1000 रोज और 8 कलम है। तो डिस्क्राइब कर दे रहा है डीएफ डॉट प्रिंट डीएफ, पूरा डेटा फ्रेम को ही प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन सब प्रिंट नहीं किया। 1000 रो तो एट ए टाइम प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट करके 4 तक किया और उसके बाद 999 तक किया है। सो देन अगर हमें उससे अभी रीड कर दिए हम, मतलब जो CSV फाइल था उसे रीड कर दिए। और हमें इस तरह से भी कर सकते हैं, जेसन को भी रीड कर सकते हैं। अब जेसन क्या होती है, अब बोले थे जावा
जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन जो होता है जेसन वाला ऑब्जेक्ट, वो जेसन ये होता है कोई भी बिग डेटा सेट होता है कि देखिए डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको हमेशा एक छोटे डेटा सेट से डील करना पड़ेगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। अगर इन केस यू आर डीलिंग विथ ए बिग डेटा, अगर डेटा की अमाउंट बहुत बड़ी है तो उसको हम बिग डेटा बोलेंगे। अगर ठीक है तो बिग डेटा पे आप जब डील करते हैं तो आपको जेसन में ही मिलेगा, मतलब आपको एक बड़ा सा डेटा सेट जेसन फॉर्मेट में दिया जाएगा। अब जेसन फॉर्मेट में दिया जाएगा तो आप उसको भी लेकर पांडा में एक डेटा फ्रेम बना दीजिएगा, और डेटा फ्रेम बना देने के बाद जो ऑपरेशंस आप कर रहे हैं पांडास में आगे चल के हम जो करेंगे वो भी कर सकते हैं। तो आप याद रखिए अगर छोटा एक्सेल में डेटा सेट आपको मिला तो ठीक है, आप वो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी फाइल अगर मिला। अगर बड़ा डाटा सेट मिला जेसन फॉर्मेट में, उसको भी आप पांडास में इंपोर्ट कर सकते हैं और वो डेटा सेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट्स हैपनिंग। So for that, let's start doing the data analysis process. जो डेटा एनालिसिस प्रोसेस होती है उसका पहला स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। सो हम एक डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। सो हाउ डेटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है। कभी कभी आपको एम्प्टी सेल मिलेगा, कभी कभी डेटा आपको रॉन्ग फॉर्मेट में मिलेगा, ओके को, और कभी कभी रॉन्ग डेटा ही मिलेगा और कभी कभी डुप्लीकेट मिलेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर क्राइटेरियाज। अपन दीज क्राइटेरिया वी नीड टू क्लीन देम। क्लीन करेंगे तो ही डेटा साइंस के नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। डेटा को पहले हम लोड कर दिए, आपको दो तरह बोल रहे कैसे लोड करना होता है। सीएसवी फाइल लोड हो सकती है और बिग डेटा है तो उसका जेसन फॉर्मेट भी लोड हो जाएगा। और अब जो हम करेंगे, अब डेटा लोड होने के तुरंत बाद हम डेटा को क्लीन करेंगे। तो हाउ टू क्लीन द डेटा, अब ये देखेंगे क्लीन। तो कब क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, तो देयर आर फोर सिनेरियोज। आपको ये सिनेरियोज याद रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस आपको डेटा क्लीनिंग चाहिए। आपको एम्प्टी सेल है उसको क्लीन करना है, और डेटा रॉन्ग फॉर्मेट में है तो उसको क्लीन करना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में हो और कुछ होगा, ईयर में और कुछ होगा, तो फॉर्मेट ही गलत है तो उसको करना है, और डेटा ही गलत है रॉन्ग डेटा है तो उसको भी क्लीन करना है। तो basically you have to do this as a first step of the data analysis project. So let's see how these things are working. So let me write this code actually. So if I will say I need head 10 and tail, so just remember df dot head of 10 का मतलब है वो पहले 10 वाला रो को रिटर्न करेगा, और टेल का मतलब है वो लास्ट को रिटर्न करेगा। और टेल में भी अगर हम 10 ही लिख दें तो लास्ट में भी वो 10 और फास्ट में भी 10, तो 10 10 20 डेटा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डेटा को क्लीन करेंगे। डेटा को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले वी हैव टू रिमूव रोज। जैसे कि अगर कोई एम्प्टी सेल्स होगा तो उस वन वे टू डील विथ एम्प्टी सेल इज टू रिमूव द रोज दैट कंटेन एम्प्टी सेल। अगर एम्प्टी सेल है वो वाला रो को ही हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, आप सोचेंगे अगर वो वाले रो को हम डिलीट कर देंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा। एक्चुअल में अगर ये भी देखा जाएगा, अगर एक रो में है एम्प्टी सेल्स, एक रो दो रो डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू कैन डिलीट दैट वन। अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हैं तो देयर विल बी डिफरेंट वे हाउ टू डील विथ empty cells. Rather you will given a value to fill in these empty cells. So the first way to deal with empty cells is you have to remove that row। मतलब जो भी रो में आपको एम्प्टी सेल मिल रहा है उसको डिलीट करेंगे। तो आप तो 1000 डाटा स्क्रॉल करके देखेंगे नहीं कहाँ का एम्प्टी सेल है, एक इंस्ट्रक्शन में एम्प्टी सेल फाइंड करेंगे और उसको डिलीट ही कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। So in order to do that, I will do the same thing. I will first import pandas as pd. Then this database whatever I'm used is nothing but the student database. So let me write student dot csv. csv stands for comma separated value. It's a database, sorry, it's a data table which is there in my console, and I'm now loading this into pandas. So now new df is a new variable where drop na means अगर एम्प्टी है तो वो न्यू डीएफ में रहेगा, और वो न्यू डीएफ को हम टू स्ट्रिंग फंक्शन होती है वो टू स्ट्रिंग फंक्शन के माध्यम से हम उसको प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स सी दीज आर गेटिंग प्रिंटेड हियर
there is a non value, non. Okay, so this much is there. सो बहुत सारे हैं एक्चुअली, तो सबको आज आउटपुट दे रहा है कि इतने सारे हैं जिसमें आपको एम्प्टी सेल्स मिल जाएंगे। तो इतने सारे तो हम डिलीट नहीं कर सकते, तो ये केस में हम इसको इग्नोर कर देंगे। अगर एक दो एम्प्टी सेल्स होगा तो हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये याद रख के हम चल देंगे। अगर डेटा रॉन्ग फॉर्मेट है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर डेट की जगह हम कुछ और लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो CSV फाइल होगा उसमें डेट वाला कॉलम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम PD2 डेट टाइम फंक्शन कॉल कर देंगे। तो वो जो डेट वाले कॉलम का जो भी गलत होगा वो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो डेट या टाइम फॉर्मेट में रख देगा। और रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए वो एक ही बात होगा, हम ऐसे लिखेंगे df डॉट ड्रॉप एन सबसेट, जो डेट होता है इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है, हमको इन प्लेस ट्रू इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर ये वाले कॉलम में देखिए, द रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्टिंग द एग्जाम्पल gave us a not empty value which can be handled as a null value, and we can remove the row by using drop and a method। so इस तरह लिख देने से ये क्या होगा, इन प्लेस टू मतलब जो जो जगह पे मुझे वो वाला नॉल मिला उसको हम रिमूव कर देंगे, ये डेट में मतलब ये डेट वैल्यूज है उसको हम रिमूव कर देंगे। देन रिप्लेसिंग वैल्यूज, रिप्लेस कैसे होगा, रिप्लेस होने के लिए हम लिखेंगे df ये लोकेशन 7 में जो ड्यूरेशन है अभी उसका नया वैल्यू 45 है, ठीक है। सो इस तरह करके हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी एक्चुअल में हम ये वाला प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगेन क्या होगा, ये जो डेटा सेट है अलग है, हम स्टूडेंट वाला डेटा सेट लेंगे। तो आई हैव टू राइट स्टूडेंट, और स्टूडेंट डेटा सेट में एक डेट कॉलम तो है ही नहीं, कौन सी कॉलम है, तो उसको हम देखेंगे क्या चेंज होती है। वो स्टूडेंट डेटा सेट पे ये जितने सारे कॉलम्स हैं, जेंडर है, पेरेंटल लेवल पे एजुकेशन है, तो बहुत सारे हैं, जेंडर है और टेस्ट प्रिपरेशन, मैथ स्कोर है, तो मैथ स्कोर भी दिख रहे हैं। तो मैथ स्कोर में दीज आर द मैथ स्कोर्स गिवन, ओके 90, 76, 86। तो मैथ स्कोर सब स्टूडेंट का दिया गया है। सो हम क्या कर सकते हैं, अब मैथ स्कोर की जगह और कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है मैथ स्कोर, ओके। सो मैथ स्कोर के जगह हम कुछ और लिखेंगे, जैसे कि df यहाँ लिख देंगे मैथ स्कोर pdf टू डाटा फ्रेम। अब इसमें खाली हम लिख देंगे मैथ, उसके बाद हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद ये मैथ कुछ एरर दिख रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा है ही नहीं, तो इसीलिए वो एरर आ रहा है। तो what to do in this case, because it is only when a data is there in a wrong format, so उसको वो एनालिसिस करके फॉर्मेट चेंज करके अप्रोप्रिएट फॉर्मेट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमको डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब डेटा को देखना ही पड़ेगा। सो इट मे टेक टाइम, आपको लगता होगा इतने सारे डेटा है तो स्क्रॉल करके देखने में टाइम लगेगा, तो टाइम तो लगना ही है, क्योंकि डेटा एनालिसिस की जो प्रोजेक्ट होती है ना, 90% टाइम जाती है खाली डेटा को समझने में, डेटा को क्लीन करने में, डेटा को मतलब क्लीन तो हो गया, समझने में भी बहुत टाइम जाती है। तो समझने का जो काम होती है डेटा को, वो आपको स्क्रॉल कर करके ही, मतलब पूरी डेटा को स्क्रॉल कर करके ही देखना पड़ेगा।
बड़ी सेट है छोटी सेट है ये तो होगा नहीं। जितना डेटा बड़ा है तो भी हमें स्क्रॉल कर करके एक बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हम सब डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, मतलब पांडास के ऊपर कि वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी ढूंढ लेगा और उसको हटा देगा। ऑटोमेटिकली रॉन्गली फॉर्मेट का डेटा ढूंढ लेगा, हटा देगा। हमको एक बार देख लेना पड़ेगा। सो वी नीड टाइम फॉर दिस थिंग। ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स वी विल हैव टू अप्लाई ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस। सो हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वैल्यू को, हम डुप्लीकेट डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट फंक्शन यूज करके प्रिंट डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, अगर डुप्लीकेटेड होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। हम रिमूव भी कर सकते हैं इन प्लेस ट्रू लिख के। इन प्लेस जो ट्रू लिखा लिखते थे, व्हाई व्हाई डू राइट दिस, it will make sure that methods does not return a new data frame, but it will remove all duplicates from the original data frame. So in place true का मतलब ये है नया डेटा फ्रेम वो बनाएगा नहीं, ठीक है, और जो डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट्स जो भी है वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। सो इस दौरान हमको ये सीखना मिला कि हम कैसे डेटा को डील करेंगे। डेटा लोड करने के बाद उसको क्लीन कैसे करेंगे, नॉल वैल्यू में क्लीन कर सकते हैं, कोई रिप्लेस कर सकता है, एंड इफ देयर इज सम wrong formatted data, we also can deal with these data. So moving to next, what will be the relationship? अगर हमारे दोस्त यहाँ कैसे रिलेशनशिप बनेगा ये तो देख सकते हैं। सो लेट मी प्रिंट df dot print df dot head। सो अब df डॉट हेड में हमें स्टार्टिंग का कुछ डेटा दिखा रहा है, जिसमें मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर और राइटिंग स्कोर, तीन स्कोर है। तो तीन स्कोर है, तो तीन स्कोर में अगर हम मैथ स्कोर और राइटिंग स्कोर मतलब दो कॉलम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी दो कॉलम को कंसिडर करके हम को रिलेशन निकालेंगे, मतलब ये निकालेंगे कि मैथ स्कोर एक वेरिएबल है और राइटिंग स्कोर एक वेरिएबल है, उनके उनके बीच के में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है का मतलब एक कोरिलेशन फैक्टर निकल के आएगा, उसके अनुसार हम तीन चीज डिसाइड करेंगे। हाउ आर दे रिलेटेड? इफ देयर विल बी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, दैट मींस दे आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इफ द कोरिलेशन इज वीक, देयर मीन्स दे आर वीकली कोरिलेटेड, मतलब एक बढ़ेगा या घटेगा कुछ भी होगा, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक नहीं है, बीच का कोरिलेशन निकल के आया, तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन दैट देयर इज हैविंग सम इम्पैक्ट। अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो ये जो हम तीनों चीज कंडीशन बोले, सो लेट मी डू दिस फॉर यू। सो हाउ टू फाइंड द कोरिलेशन? सो बेसिकली कोरिलेशन फाइंड करना भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाले जो डेटा है ये वाले डेटा डेटा के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो ये हमको कोरिलेशन से पता चलेगा। तो देखते हैं कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। सो इसी के लिए पांडास का एक ही लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। पांडास आपको एक फिगर दे देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम कोरिलेशन हम सीएसवी फाइल लेंगे और लेने के बाद को तो कोर मेथड कैलकुलेट्स द कोरिलेशनशिप बिटवीन ईच कॉलम इन योर डेटा सेट। सो हमें खाली कोर मेथड को कॉल कर देना पड़ेगा। तो देखते हैं df डॉट कोर में हमें क्या मिलता है। हम चले यहाँ और जस्ट df डॉट कोर को कॉल करते हैं। कोर को कॉल कर देने के बाद वो हमें कोरिलेशन पूरा दे दिया। तो देखिए मैथ मैथ रीडिंग राइटिंग यहाँ दिया हुआ है, मैथ रीडिंग राइटिंग वहाँ दिया गया है। तो इसका मतलब है मैथ का रीडिंग का कोरिलेशन 0.8 है, राइटिंग का 0.8 है, और मैथ रीडिंग के साथ तो एक ही होगा, और राइटिंग के साथ 0.9 है। तो राइट, तो ये पता चल रहा है द कोरिलेशन बिटवीन मैथ एंड रीडिंग इज 0.8। इतना तो पता चल रहा है। सिर्फ मैथ को और रीडिंग को अगर हम कोरिलेट करें तो मुझे 0.8 मिल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर द फिगर्स। एक्चुअली आपको तीन चीज मिलेगा, एक मिलेगा गुड कोरिलेशन,
एक मिलेगा बैड कोरिलेशन और एक मिलेगा परफेक्ट कोरिलेशन। पहले परफेक्ट कोरिलेशन का देखते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन में एक रहेगा, जैसे कि ये बढ़ेगा तो पूरा 100% इसके साथ रिलेटेड है। परफेक्ट रिलेशन कहीं पे नहीं आता है। ओके, उसके बाद गुड रिलेशन। तो गुड रिलेशन हो जाएगा अगर 0.9 है तो विच इज वेरी गुड कोरिलेशन। बैड कैसे आएगा, तो वो घट के 0.0000 आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है एक है। और एक से अगर जितना घट के जा रहा है, एक है तो परफेक्ट कोरिलेशन, उसे थोड़ा घटा तो गुड कोरिलेशन, और पूरा एक छोटा घट मतलब लेस अमाउंट ऑफ नंबर आ रहा है तो बैड कोरिलेशन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करके मिलेगा क्या। गुड कोरिलेशन में ये मिलेगा, अगर दिस क्वांटिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, so it will get affected, means another quantity will also get affected because they are strongly correlated, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कोरिलेशन आपको डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा, जैसे कि दो कॉलम को हम कोरिलेट करके ये बोल सकते हैं कि हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। सो आई होप इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट पांडास। आप पांडास कैसे यूज करोगे, पांडास इंपोर्ट करना है, पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद इंपोर्ट करना है, उसके बाद डेटा लोड करना है, जेसन भी लोड कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम डिलीट करेंगे, कोई एम्प्टी सेल है, कोई डुप्लीकेट सेल है, तो ये क्लीनिंग भी हो गया। और उसके बाद कैसे हम एनालिसिस किए। आपको लगता है आप एक ही लाइन लिख दिए ना, कोर वाला जो लाइन, वही एनालिसिस होती है। अब उसको एक ही लाइन प्रोग्राम लिख दिए, लेकिन वो पूरा डेटा को एनालिसिस करके आपको कोरिलेशन का रिजल्ट दिया है। तो ये एनालिसिस हो गया। तो इस दौरान हम पांडा को यूज करके डेटा को क्लीन किए भी और डेटा को एनालिसिस भी किए। ऐसे ही होती है डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। हम आगे चल के जो फुल प्रूफ प्रोजेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, वहां पर हम जब डेटा पांडा यूज करेंगे, so I think at that time there won't be any issues. So for today's class, I'm in the sorry for in the next class I will discuss about visualization part using another library called Matplotlib. So till then, keep doing keep practicing Python, and do subscribe to my channel. Thank you.